अगर अभी भी पढ़ाई नहीं की तो AIBE 19 भी गया समझो। देखो, मैंने अभी तक इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाई है कि AIBE 19 के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, इसकी क्या लास्ट डेट है क्या नहीं, ये सब कुछ आप ऑलरेडी आपको पता चल चुका होगा। तो देखो, जो मेरा मेन मोटिव है वो यही है कि AIBE 19 अब अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 1-1.5 महीना है, नवंबर में इसका एग्ज़ाम है। तो इस दौरान आप अपना पूरा AIBE 19 का जो कोर्स है वो एक बार कंप्लीट कर लो। मिशन AIBE के साथ जुड़ जाओ, और इससे क्या होगा कि जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको पता लगती चली जाएंगी। आज मैं आपके सामने सबसे इम्पॉर्टेंट केस लॉज रिलेटेड टू लिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं वो मैं धीरे धीरे करके लेके आती रहूँगी। आज हम कितने के बारे में बात कर रहे हैं? 5 केस लॉज के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ठीक है। Here are 5 significant case laws that have shaped the interpretation and application of the Limitation Act in India. पहला था ओरिएंटेशन बैंक कॉरपोरेशन वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको नोट कर लेना कहीं पे, क्योंकि अगर कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो केस लॉ है वो किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर बेस्ड है, तो आप वहाँ पे टिक करना पड़ेगा लिमिटेशन एक्ट के ऊपर है। या फिर वो आपको क्वेश्चन दे देंगे कि इस जो केस लॉ के अंदर क्या था, इसका मोटिव क्या था, इस केस लॉ में क्या इसका क्रक्स था, तो वो एक लाइन में आपको आंसर देना होगा। मैं पढ़ के सुनाती हूँ। दिस केस clarified the concept of knowledge under the Limitation Act. The court held that knowledge for the purpose of limitation does not imply actual knowledge but rather constructive knowledge which arises from circumstances that put a party on inquiry. This case has been influential in determining when a cause of action occurs and when the limitation period begins to run. Oriental Bank Corporation versus Official Liquidator, Central Bank of India. State Bank of India versus MSGM Trading Company. This case dealt with the issue of continuous breach. The court held that in case of continuous breach, a fresh cause of action arises with each breach and the limitation period for each breach starts afresh. जितनी बार ब्रीच करते चले जाओगे उतनी बार कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता चला जाएगा और उतनी बार ही आपके पास लिमिटेशन पीरियड भी फ्रेश स्टार्ट होता चला जाएगा. This case has been crucial in understanding how the limitation period applies in cases of ongoing breaches of contract or other obligations. This case, third is Oriental Bank Corporation versus R.K. Daga. This case addressed the issue of fraud under the Limitation Act. The court clarifies that the limitation period for a claim based on fraud does not begin to run until the fraud is discovered or could have been discovered with reasonable diligence. This case has provided important guidance on the application of the limitation period in case of fraud and deceit. ठीक है, फ्रॉड हुआ था या चीटिंग हुई थी तो उससे रिलेटेड ये केस था. दिस केस फोर्थ इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस MSMK एंटरप्राइजेस. दिस केस डेल्ट विद द इशू ऑफ एक्नॉलेजमेंट अंडर द लिमिटेशन एक्ट. द कोर्ट हेल्ड दैट द एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी equal and unconditional to the prevent and operation of the limitation period. This case has been instrumental in understanding the requirement for a valid acknowledgement under the limitation act. एक्नॉलेजमेंट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा. इसके अंदर लिमिटेशन एक्ट के अंदर है कि कोई भी काम होता है तो उसमें एक्नॉलेजमेंट लेनी पड़ती है, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट अगर होती है, साइन होते हैं, तो ये उसके ऊपर केस बेस्ड था. State Bank of India versus MS-AKM Industries. This case addressed the issue of part payment under the Limitation Act. The court clarified that part payment of a debt must be made by the debtor or someone authorized by the debtor to be effective in preventing the operation of the limitation period. This case has provided guidance on the requirement for a valid part payment under the Limitation Act. ये 5 मैंने आपको करवा दिए हैं, एक बार से दोबारा से देख लो. लिमिटेशन एक्ट के ऊपर है ओरिएंटल बैंक कॉरपोरेशन वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर से थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस GM ट्रेडिंग कंपनी, इससे भी ट्रेडिंग कंपनी से याद रखना. डागा केस अपने आप में कुछ नई चीज़ लग रही है तो लिमिटेशन पीरियड से है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस MK एंटरप्राइजेज, ये भी लिमिटेशन का है. AKM इंडस्ट्रीज़, ये भी लिमिटेशन का है. तो एक छोटा सा इसके अंदर आप एक ऐसी चीज़ को ढूंढ लेना जिससे आपको पता लग जाए कि भाई ये लिमिटेशन एक्ट का केस लॉज हैं.
इनको कहीं पे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जब आपको एग्ज़ाम होने लगेगा उससे एक दिन पहले इन सारी चीज़ों को दोबारा से हम लोग रिवाइज़ कर लेंगे। अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप अपने आप भी मुझे बता देना, और अदरवाइज़ तो मैं आपके लिए हर रोज़ नए टॉपिक्स लेकर आती रहूँगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।